Good afternoon. Myself, Seema Sharma, Assistant Professor in SIRTS Pharmacy from Sage Group Bhopal. Welcome you all in today's revision class. The topic for today is nasal decongestants and respiratory stimulants. First, we discuss what is decongestant. कि decongestants होते क्या हैं? A decongestant or nasal decongestant is a type of pharmaceutical drug that is used to relieve nasal congestion in the upper respiratory tract. जब कोल्ड हमें जब कंजेशन हो जाता है, जब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या है नेजल डिकंजेस्टेंट्स यूज करते हैं टू जस्ट क्लीन द एयरवे. The active ingredients in most decongestant is either pseudoephedrine or phenylephrine. Intranasal corticosteroids can also be used as decongestants and antihistamines, and it can be used to alleviate runny nose, nasal itching, and sneezing. रेगुलर यूज ऑफ डिकंजेस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड शुड बी अवॉइडेड. मतलब हम कह रहे हैं कि अगर रेगुलरली हम यूज करें नेसल डिकंजेस्टेंट, नॉर्मली हम कब लेते हैं? जब हम कह रहे हैं कि हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाता है, जब हमारा नोज ब्लॉकेज हो जाता है या एयरवे ब्लॉकेज हो जाती है, स्पूटम इकट्ठा होने लग जाता है, तब हम क्या लेते हैं? नेसल डिकंजेस्टेंट्स लेते हैं. बट रेगुलर यूज ऑफ डिकंजेस्टेंट्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स के लिए हमें अवॉइड करने चाहिए. वो क्या करते हैं? म्यूकस सिलेरी फंक्शन को इम्पेयर कर देते हैं, जिससे क्या होता है? एटोपिक राइनिटिस एंड एनोसोमिया. एनोसोमिया क्या होता है? लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. हमें मतलब स्मेल आना ही बंद हो जाता है अगर हम उसका रेगुलर यूज करते हैं डिकंजेस्टेंट्स का. Decongestant can be absorbed from the nose via an inhalers and produce systemic effect, mainly central nervous system and rise in blood pressure. Decongestant normally कहाँ से हम absorb करते हैं? From the nose. मतलब हम inhale करते हैं, inhaler के through वो absorb हो जाते हैं and produce के बाद के वो अपने system में effect देते हैं in the CNS, and they can also increase the BP, blood pressure. These drugs should be used cautionally in hypertensives and in those receiving monoamino oxidase inhibitors, because they can cause hypersensitive crisis. हम कह रहे हैं जितने भी नेसल डिकंजेस्टेंट ले लेते हैं तो हम नोज के थ्रू इनहेल करते हैं उसको, बट वो क्या करता है? उसका सिस्टमिक इफेक्ट कहाँ आ रहा है? सीएनएस. और वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली क्या बीपी राइज कर देता है. तो हम उन ड्रग को कॉशनली देंगे इन हाइपरसेंसिटिव केसेस पेशेंट्स में, क्योंकि वो क्या करेंगे? हाइपरसेंसिटिव क्राइसिस करेंगे. तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उनमें जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, तो उनको डिकंजेस्टेंट्स हम कैसे दें और कितना दें. As they can expectorants such as guaifenesin are a related type of drug which can help to clear mucus. Next is majority of decongestant, enhancing norepinephrine, epinephrine, adrenaline activity by stimulating alpha-1 adrenergic receptors, since they mediate vasoconstriction and constricting nasal vasculature. So it causes congestion of the nasal mucosa. This induces vasoconstriction of the blood vessels in the nose, throat, and paranasal sinus, which results in reduced inflammation and mucus formation in these areas. अब हम कह रहे हैं कि कैसे एक्ट करता है, कैसे इसको रिस्पॉन्स देता है. ये क्या करता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देता है ब्लड वेसल्स में, नोज में, जहां से भी हम कह रहे हैं कि हमारा स्टिमुलेशन होता है या स्प्यूटम जमता है या कोई भी इन्फ्लामेशन होती है, वो क्या करेगा? उन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा? इन्फ्लामेशन, म्यूकस सिक्रीशन सब कुछ कम हो जाएगी. Decongestant nasal spray and eye drops often contain oxymetazoline and are used for topical decongestion. Pseudoephedrines act indirectly on the adrenergic receptor system, whereas phenylephrine and oxymetazoline are direct agonists. The effects are not limited to the nose, and these medicines may cause hypertension. So, for this reason, people with hypertension are advised to avoid that decongestant sprays. Next is most decongestants, however, are more pronounced stimulants due to lack of response from the other adrenal receptors. Besides hypertension, common side effects include sleeplessness, anxiety, dizziness, excitability, and nervousness. Topical nasal and ophthalmic decongestants quickly develop tachyphylaxis. What is tachyphylaxis? It's a rapid decrease in the response to a drug after repeated doses over a short period of time. तो हम क्या कह रहे हैं? टॉपिकल
नेजल या ऑप्टिमल डिकंजेस्टेंस क्या करेंगे, टैकिफाइजेस डेवलप कर लेंगे। टैकिफाइज क्या होता है, धीरे धीरे रिस्पॉन्स जो होता है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद अगर हम बार बार उसका डोज ले रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स आना कम हो जाता है। दैट इज टैकिफाइलेक्सिस। लॉन्ग टर्म यूज इज नॉट रिकमेंडेड सिंस द एजेंट्स लूज इफेक्टिवनेस आफ्टर अ फ्यू डेज। हम कह रहे हैं क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जितने भी टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट्स हैं या ऑप्थेल्मिक डिकंजेस्टेंट्स हैं, तो लॉन्गर पीरियड के टाइम पे हम यूज नहीं करते, क्योंकि थोड़े टाइम बाद क्या है, इनका जो इफेक्ट है, इनका रिस्पॉन्स है, वो कम होने लग जाता है। इसलिए इसको कुछ कुछ रिपीटेड डोज में देना चाहिए आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद लेना चाहिए फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। अदरवाइज क्या है, उसका जितना भी रिस्पॉन्स है वो कम होता जाएगा अगर हम इसको डायरेक्टली और मतलब रैपिडली लेंगे तो। Next is mechanism of action. Decongestants stimulate alpha-adrenergic receptors to constrict dilated arteries within the nasal mucosa. देखो mechanism of action जो बता रहे हैं, ऑलरेडी हमने पीछे वही डिस्कस किया कि वो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पैरा में कि वो क्या करते हैं यहाँ पे कि वो इन्फ्लामेशन और म्यूकस सिक्रेशन का मतलब कि वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो हमने दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। Decongestants stimulate alpha-adrenergic receptors to constrict and dilate arteries within the nasal mucosa. This decreases the amount of swelling and formation of mucus in the nose from the common cold, साइनोसाइटिस एंड अपर रेस्पिरेटरी एलर्जीज। तो क्या करते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और वो आर्टरीज को जो है ब्लड वेसल्स को वहां पे उस आर्टरीज को डायलेट कर देंगे, जिससे क्या इन्फ्लेमेशन भी क्योर हो जाएगा एंड म्यूकस सिक्रेशन भी कंट्रोल हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ डिकंजेस्टेंट्स। शॉर्ट एक्टिंग नेसल डिकंजेस्टेंट दैट इज एफेड्रिन and levetiracetam and L pseudoxyphedrine that is Vicks vapor of inhalers जो हम लोग लेते हैं, that is short acting nasal congestants, example of short acting nasal decongestants. Next is nafozoline, that the name is Preverine, phenylephrine, and last one is propyl hexadrine, that is Benzedrix inhalers. That are the examples of short acting nasal decongestants. Next is long acting nasal decongestant. Long acting nasal decongestant जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है 8 to 12 आवर्स तक का रहता है. एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग decongestants are xylometazoline, oxymetazoline. Xylometazoline, the other name is triaminic decongestant spray nasal and sinus congestions. And next is oxymetazoline, Afrin, Vicks and Zicam nasal gel. ये क्या करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग डिकंजेस्टेंट, इसका जो मतलब एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, और जो शॉर्ट एक्टिंग है वो थोड़ी देर के लिए उनका एक्शन रहता है. साइड इफेक्ट्स ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंस: बर्निंग, स्टिंगिंग, स्नीजिंग, ड्राइनेस, लोकल इरिटेशन, रीबाउंड कंजेशन, हाई बीपी, फास्ट हार्ट बीट, सीजर्स, एंजाइटी, डिजीनेस एंड ट्रेमर्स. अवेलेबल फॉर्मुलेशन, जब हम कह रहे हैं जो भी डिकंजेस्टेंट्स है नेजल डिकंजेस्टेंट्स को मार्केट अवेलेबल फॉर्मुलेशन कौन सी है? नेजल डिकंजेस्टेंट अवेलेबल है स्प्रेज, ड्रॉप्स एंड इनहेलर्स. या तो हम स्प्रेज लेते हैं या ड्रॉप्स डालते हैं नोज में, या हम इनहेल करते हैं. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स. देखो ये छोटा सा टॉपिक था, ये ऑलरेडी हम जितना भी अस्थमा एंड सीओपीडी डिस्कस कर चुके हैं, एंटीटसिव ड्रग्स डिस्कस कर चुके हैं, उसी में आगे था, ये फर्दर कंटिन्यूएशन में था, बट हमने इसको एक छोटा टॉपिक अलग लेके डिस्कस किया है. तो दैट इज वेरी शॉर्ट टॉपिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड. मगर अगर हमने अस्थमा, सीओपीडी एंड अपना एंटीटसिव थॉरोली डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं, तो हमें ये इजीली समझ आएगा. नेसल डिकंजेशन अंदर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स. लास्ट इज respiratory stimulants. Respiratory stimulants can arouse the patient sufficiently to allow effective physiotherapy and by stimulating respiration, and it can improve ventilation, perfusion, matching.
इट अवॉइड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंस इन पेशेंट विद एपिलेप्सिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंस क्या होते हैं, एक इफेक्टिव फिजियोथेरेपी होती है जो क्या करती है, रेस्पिरेशन को इंक्रीज करती है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा नोज ब्लॉकेज है तो हमें सांस आने में दिक्कत है, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंस क्या करता है, रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है थ्रू फिजियोथेरेपी। एंड ये क्या करेगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग करेगा। मतलब हम कह रहे हैं कि हमें सांस लेना, मतलब ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगा, एयरवे हमारा नॉर्मली वर्क करेगा। And avoid respiratory stimulants in a patient with epilepsy। क्यों उन पेशेंट्स में अवॉइड करना चाहिए जिनको एपिलेप्सी या कन्वर्जन्स का रिस्क होता है, तो उनको हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स नहीं देंगे। एग्जांपल्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, द कैप्सिड, कैफीन, डोपरम, डोक्साप्रैम, नोडॉक्स, रिचाज एंड वेवरिन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ये छोटा सा टॉपिक था आपको समझ आ गया होगा।